Welcome to 30 Days CAPF Crash Course. This is Himanshu, All India Rank 163 in CAPF 2019. This is the Science 10th lecture and we'll be dealing with topic what is living, 5 kingdom organism classification, cell and structure. Very important for the exam viewpoint. So you can expect at least 2-3 questions from here. So stay tuned and attentive. Let us proceed. सबसे पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ लिविंग। देखिए कुछ कैरेक्टर्स हैं जो डिस्टिंग्विश करते हैं लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग। फर्स्ट इज़ ग्रोथ, देन रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डिस्टिंग्विश करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टिमुलाई का मतलब आप समझिए कि इट इज़ द एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू दी सराउंडिंग। नेक्स्ट इज सिस्मेनोस्टिक मूवमेंट। हम टच मी नॉट प्लांट को जब हम टच करते हैं तो प्लांट जो है वो अपने लीव्स को क्लोज कर देता है। दैट मूवमेंट इज कॉल्ड दी सिस्मोनास्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखिए सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि दिस इज कॉल्ड द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट इज जेनेरा प्लानेटेरियम इज अ बुक विच वाज रिटन बाय बैंथम एंड हुकर। Next is five kingdom classification. देखिए five kingdom classification was done by R.H. Whittaker in 1969. Living world he divided into Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. Kingdom classification में सबसे पहला kingdom है Monera kingdom. Monera kingdom includes all the prokaryotic organism. देखिए prokaryotic organisms are those organisms which are having primitive cell structure but they lack nuclear membrane in their structure. ये आगे आप अच्छे से समझेंगे। इस kingdom में जितने भी organism है they are all microscopic. Very important point. Next kingdom है Protista. See, Protista kingdom includes unicellular form of organism and on the basis of mode of nutrition, Protista kingdom Protista kingdom are classified into autotrophs, parasitic and saprophytic. देखिए autotrophics are those which prepare their own food. Parasitic आपको पता होगा कि they depend on the body of host for their livelihood. Next is saprophytic. Saprophytic are those organisms which depend on dead and decaying matter. Next point आपको Protista में याद रखना है कि Eglena have both heterotrophic and autotrophic mode of nutrition, and so it is placed between plants and animal. Very important point. Next is fungi kingdom. Fungi kingdom includes non-green plants. They have saprophytic nutrition, that is they depend on dead and decaying organic matter. Examples आप इसका याद रखेंगे mushroom. Next is Plantae kingdom. It includes all the plant kingdom. It includes all the plant except algae, diatoms, fungi and member of Monera and Protista. Next is Animalia. Animalia kingdom includes all the animals that comes under this kingdom. नेक्स्ट पॉइंट इज देखिए आपको साइंटिफिक नेम कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है तो आप मैन का याद रखेंगे। साइंटिफिक नेम इज़ होमोसेपियंस। मैंगो का इज़ मैंगीफेरा इंडिका। फ्रॉग इज़ राना टिग्रिना एंड हाउस फ्लाई इज़ मस्का डोमेस्टिका। रेस्ट आप बस इतना आप ध्यान रख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक इज सेल। देखिए स्टडी ऑफ सेल को हम सिस्टोलॉजी बोलते हैं। सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले द वर्ड सेल वाज coined by Robert Hooke in 1665. Very important point. The smallest known cell is mycoplasma. Very important point. Again, the longest cell in human body is neuron and the biggest egg cell is of ostrich. Skildon and Sachwan they established the cell theory. And next important point is germ plasma theory was produced by August Weismann. Next is main feature of cell theory. देखिए सेल थ्योरी में बोलता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल. बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल एंड ईच सेल इज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल एंड एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ फ्रॉम सिंगल सेल. तो ये 4 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट देखिए सेल जो है 2 काइंड होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्रिमिटिव सेल्स हैविंग 3 बेसिक स्ट्रक्चरल सेल बट दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. एग्जांपल में आप याद रखेंगे वायरस, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक्स. इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज अवेलेबल इन प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल इज 0. स्मॉलेस्ट नॉन प्रोकैरियोटिक इज माइकोप्लाज्मा, हमने कवर किया था. नेक्स्ट इज यूकैरियोटिक. देखिए यूकैरियोटिक सेल जो है इट इज अ कंप्लीट सेल विच कंटेन्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एंड न्यूक्लियस लाइक द प्रोकैरियोटिक. देखिए प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है बट यूकैरियोटिक सेल में इट कंटेन्स द न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का द बिगेस्ट सिंगल सेल इज एसिटोबुलेरिया. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट इज न्यूक्लियस कंटेन क्रोमेटिन विच इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन. देखिए आपसे डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, तो आप याद रखेंगे कि न्यूक्लियस जो है इट कंटेन्स क्रोमेटिन एंड क्रोमेटिन इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन. Next is difference between prokaryotic and eukaryotic cell. Very important. You can very important from the exam viewpoint. देखिए prokaryotic का generally small size होता है
कंपेयर टू यूकैरियोटिक। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में, व्हाइल इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक। It contains single chromosome which is circular in shape in prokaryotic cell, while it contains more than one chromosome in eukaryotic cell. Very important point. Next is membrane bound cells are absent in prokaryotic, and cells organelles are present in the eukaryotic cell. Next is cell division takes place by fission or budding, but in the eukaryotic cell division takes place by mitosis or meiosis. देखिए मिटोसिस और मियोसिस क्या होता है ये आगे के लेक्चर्स में जानेंगे। फिजन और बडिंग भी हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तो आगे हम प्रोसीड करते हैं। देखिए नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। देखिए सबसे पहला है सेल वॉल। जो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ रिजिड आउटर मोस्ट कवरिंग होता है दैट इज सेल वॉल्स। देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि सेल वॉल जो है इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन दी plants while it is absent in the animals। तो सेल वॉल का एक बार हम पढ़ देते हैं। इट इज़ अ रिजिड सेल इन प्लांट देयर इज अ रिजिड सेल वॉल, rigid cell covering which is non-living and it is freely permeable. It is made up of cellulose and chitin. Very important point. Cell wall provides shape and rigidity to the cell. Next is cell membrane. See, it is plasma membrane which forms the outer covering of animal cell. जाहिर सी बात है कि प्लांट सेल में सबसे आउटर कवरिंग सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन ही आउटर कवरिंग होता है। एंड it is made up of phospholipid molecules. Very important point. Function जो है इसका, it regulates the movement of molecules inside and outside the cell. Very important point. Next is protoplasm. देखिए जो बाकी सबसे आउटर है वो सेल वॉल है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद जो फ्लूइड प्रेजेंट जो होता है इनसाइड प्लाज्मा दैट इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म। Next is protoplasm जो है it is divided into two parts, that is cytoplasm and nucleoplasm. The fluid that is found outside the nuclear membrane is called cytoplasm, and which is found inside the nuclear membrane is called nucleoplasm. That is called the nucleoplasm. Very important point. 99% of the protoplasm is made up of oxygen, carbon, hydrogen and nitrogen. 80% of protoplasm consists of water. Next is mitochondria. Very important point. Mitochondria से आपको याद रखना है कि ये it is called the powerhouse of the cell. It is cylindrical and rod shape. The fluid that is present inside the mitochondria is called the matrix. देखिए आपको सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना पॉइंट अगर ध्यान रखते हैं तो एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। हम सिर्फ एग्जाम व्यू पॉइंट से डील कर रहे हैं। नेक्स्ट इज गोल्जी बॉडीज़। देखिए गोल्जी बॉडीज़ जो है it helps in the synthesis of carbohydrate. Very important point from the Golgi bodies. And it works as a storage, processing and packaging material. Functions काफ़ी important आते हैं एग्जाम व्यू पॉइंट में, आपसे क्वेश्चंस जो बनते हैं यहाँ पे फंक्शंस पे ज़्यादा एम्फेसाइज करता है। गोल्जी बॉडीज़ क्या होता है, तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ट्यूब्स, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। एंड एक और पॉइंट गोल्जी बॉडीज़ का, इन प्लांट इट इज़ मोर प्रोमिनेंट एंड मोर इन नंबर्स, एंड हियर इट इज़ नोन एज द डिक्टोजोम्स। नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का फंक्शन है, इट हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल। एंड इसका जो स्ट्रक्चर इट इज़ ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर, इट इज़ अटैच्ड विद द न्यूक्लियस ऑन वन साइड एंड ऑन द अदर साइड इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप इतना याद रखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से। नेक्स्ट इज राइबोसोम्स। देखिए राइबोसोम्स आर स्मॉल ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर दैट इज अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इन अ फ्री स्टेट एंड इट इज मेड अप ऑफ आरएनए। फंक्शन इसका प्रोटीन सिंथेसिस है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इज लाइजोसोम्स। देखिए एग्जाम में जो आपसे पूछेगा सुसाइड सेल ऑफ द बैग किसको बोलते हैं, तो यू नीड टू रिमेंबर दैट लाइजोसोम्स को हम सुसाइड सेल बोलते हैं बिकॉज इट डिस्ट्रॉयज इट्स ओन digest its own entire cell which it consider is waste। तो लाइसोसोम से आप याद रखेंगे कि सुसाइड बॉल, एंड इसका जो स्ट्रक्चर वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट इज सेंट्रोसोम। सी सेंट्रोसोम इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इज इट इज ओनली फाउंड इन द एनिमल सेल एंड इट टेक्स प्लेस इन टेकिंग पार्ट इन द सेल डिविजन। फंक्शन इज टू इनिशिएट द सेल डिविजन। नेक्स्ट इज प्लास्टिड। इट इज ओनली फाउंड इन द प्लांट सेल and it is of three type: chloroplast, chromoplast and leucoplast. Very important from the exam viewpoint. Chloroplast, see it is the green pigment, जो भी green color जो हम find करते हैं plant का, it is due to the presence of chloroplast and it involves in the photosynthesis process that helps in the making of food for the plants, and that is why it is called the kitchen of the cell. Very important point. Function इसका green color to the plant and take part in the photosynthesis. Next is chromoplast. देखिए other color जो होता है plant का that is provided by the chromoplast and green color to the plant is given by the chloroplast. ये point आप याद रखेंगे. Next is leucoplast. See, leucoplast is colorless and it stores the food in form of starch, fat and protein. Leucoplast is found in root and underground stem. Next is vacuole. See, vacuole is a फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन। एक पॉइंट आपको याद रखना है कि इन प्लांट इट इज़ लार्जर इन साइज कंपेयर टू एनिमल्स। फंक्शन इसका इज ऑस्मो रेगुलेशन। ये जितने भी टॉक्सिक्स वेस्ट होते हैं इसको ये स्टोर करता है वैक्यूल्स। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर इज स्फेरिकल एंड इट इज सेंट्रली लोकेटेड
Nucleoplasm is a fluid material that is found inside the nucleus and it consists of nucleolus and chromatin that is present in the nucleus. Point आपको याद रखना है कि nucleolus is rich in protein and RNA, while chromatin is a thread-like structure and it is made up of DNA and histosine protein. ये हमने पहले भी देखा था. Next function इसका है, see, it is the control room of the cell because it controls all the activities that is happening inside the cell. तो इसीलिए न्यूक्लियस जो है it is very important and most important part, that's why it is called the control room of the cell. नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि अदर देन न्यूक्लियस डीएनए इज आल्सो फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट हैज़ बीन आस्क्ड ट्वाइस इन सिविल सर्विसेज एंड ऑल्सो सेवरल टाइम्स इन सीएपीएफ, तो आप इस पॉइंट को एकदम ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन. नेक्स्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. देखिए, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अगेंस्ट डिफ्यूजन ग्रेडियंट विद द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन थ्रू सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. देखिए, प्लांट सेल जो होता है डैट इज लार्जर इन साइज कंपेयर टू एनिमल सेल. सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होता है वाइल इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल. प्लास्टिड इसमें प्रेजेंट होता है, हमने अभी पढ़ा था कि प्लास्टिड इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल वाइल इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल. सेंट्रोजोम एब्सेंट होता है प्लांट में लेकिन सेंट्रोजोम प्रेजेंट होता है एनिमल में. Vacuoles are larger in size in plant cell compared to animal cell. Next important point is cell increases in volume when it is placed in hypotonic solution. Hypotonic and hypertonic solution क्या होता है? देखिए, when excessive concentration is present inside the cell than the surrounding, then it is the hypertonic solution. While if the concentration is very less inside this structure than the surrounding, then it is the hypotonic solution. I hope आपको ये क्लियर हुआ होगा. तो एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि when cell increases in volume when it is placed in the hypotonic solution. Next is when fresh egg placed in salt water it floats. See, why it happens? Because salt water makes the water very denser and that is why egg is able to float on it. Next is chromosome. See, chromosome is a thread-like structure which is found in the nucleus as chromatin material. नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि बीड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज फाउंड ऑन क्रोमोसोम्स आर जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए विच आर द कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. इन सम वायरसेस RNA is the genetic material called retrovirus. Very important point. देखिए, prokaryotic there is only one chromosome like bacteria and virus. Next is chromosomes are made up of DNA and protein. Very important point, आप इसको याद रखेंगे. Chromosome was named by Waldear in 1888. नेक्स्ट इज डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. देखिए पर्टिकुलर पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है. जैसे कि ह्यूमंस में आप देखेंगे कि देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम. जब वो पेयर्ड में हम देखते हैं तो दैट टर्म इज कॉल्ड दी डाइप्लॉयड. जैसे कि हमारा ह्यूमन में आप देखेंगे कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम टुगेदर 23 पेयर्स, मतलब टोटल देखिएगा तो 46 क्रोमोसोम है. अगर हम पेयर में देखेंगे तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमन में, तो दैट इज कॉल्ड दी डाइप्लॉयड. लेकिन अगर सेट ऑफ अनपेयर्ड क्रोमोसोम जैसे कि 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर्स क्रोमोसोम है, तो 23 पेयर्स की जगह सिर्फ आप एक ही पेयर को काउंट कर रहे हैं, दैट इज सेट ऑफ अनपेयर्ड क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड दी हैप्लॉयड. आप ये डिफरेंस बहुत अच्छे से समझिएगा. डाइप्लॉयड एंड हाइप्लॉयड का एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपका. नेक्स्ट इज न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑफ टू काइंड्स. फर्स्ट इज डीएनए, सेकेंड इज आरएनए. तो अब डिफरेंस देखते हैं. देखिए, डीएनए में जो आपको पॉइंट याद रखना है कि केमिकली न्यूक्लियोटाइड हैज़ 3 कंपोनेंट, दैट इज नाइट्रोजन बेस, डीऑक्सीराइबोस सुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप. 4 काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन डीएनए, दैट इज एटीजीसी, दैट इज एडेनिन, गुआनिन, थायमिन एंड साइटोसिन. आप ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में मत जाइए, बस आप इतना याद रखिए कि 4 काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन डीएनए, दैट इज एटीजीसी, दैट इज एडेनिन, गुआनिन, थायमिन एंड साइटोसिन. व्हाइल कंपेयर टू आरएनए इसमें एयूजीसी होते हैं, इट इज एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन एंड साइटोसिन. आगे आप अच्छे से समझेंगे. देखिए, वॉटसेक एंड क्रेक गेव द स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ डीएनए. आपको एग्जाम व्यू पॉइंट से याद रखना है कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, डबल हेलिक्स, एंड इट इज ईच स्ट्रैंड हैज़ अ बैकबोन ऑफ सुगर एंड फॉस्फेट. नाइट्रोजन बेस इज अटैच टू द सुगर. देखिए, ये इक्वेशन आपको याद रखना है कि व्हेन सुगर एंड नाइट्रोजन बेस को हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं. न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोटाइड.
कई बार आपसे डायरेक्ट इक्वेशन पूछ करके ये सवाल बन जाता है, तो आप ये इक्वेशन एकदम अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ डीएनए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोड बॉन्ड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक क्या होता है? हाइड्रोफोबिक आर दोज सब्सटेंस विच आर हैविंग फोबिया विद द वाटर, दे आर नॉट सोल्यूबल, they repel the water, while hydrophilic are water loving। तो आप याद रखेंगे कि DNA is a hydrophilic of DNA is of hydrophilic nature and it happens due to the presence of phosphode bond। फंक्शन देखिए क्या होता है डीएनए का, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्लाउड करना, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करना, एंड नेक्स्ट इज डीएनए सिंथेसाइजेस द आरएनए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डीएनए इज मेनली फाउंड इन न्यूक्लियस बट स्मॉल अमाउंट इट इज ऑल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। हमने पहले भी ये पॉइंट देखा था, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार एग्जाम्स में आया है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड सब यूनिट ऑफ डीएनए इज न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट इज जीन। देखिए जीन इज अ हेरिडेटरी यूनिट, हमने पहले भी पढ़ा था, एंड इट इज़ फाउंड इन द क्रोमोसोम्स। म्यूटेशन, एनी चेंज इन द बेस सीक्वेंस ऑफ विद इन द जीन इज म्यूटेशन। बेस सीक्वेंस क्या होता है? बेस सीक्वेंस हमने देखा यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस एंड न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन द डीएनए दैट इज एटीजीसी। तो इसमें अगर कुछ चेंजेस आता है तो दैट इज कॉल्ड द म्यूटेशन। नेक्स्ट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। देखिए कंपेयर टू डीएनए, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड व्हाइल डीएनए वाज डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड। So RNA is single stranded and it is made up of phosphate, ribose sugar and nitrogen base containing uracil, adenine, guanine and cytosine AUGC। आप DNA से याद रखेंगे ATGC और RNA से याद रखेंगे AUGC। आप सब कुछ भूल करके बस ये पॉइंट भी याद रखते हैं AUGC एंड ATGC, आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट इज RNA मॉलिक्यूल विच एक्ट्स एज एंजाइम्स आर कॉल्ड द राइबो एंजाइम्स। RNA जो होता है वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज mRNA दैट इज मैसेंजर RNA, मैसेंजर से ही पता चल रहा है कि इट ब्रिंग्स मैसेजेस फ्रॉम DNA। next is RNA that is ribosomal RNA and it in the protein synthesis। Next is transfer RNA that is tRNA, it carries amino acid and transfer it to the ribosomes। Next is function of RNA that it helps in the synthesis of protein। The process of copying genetic information from one strand of DNA into mRNA that is messenger RNA is termed as transcription। Very important term you need to keep in mind। Next is difference between RNA and DNA। देखिए शुगर में जो डीएनए होता है दैट इज़ डीऑक्सीराइबोज एंड आरएनए में जो होता है सिंपल राइबोज। दैट इज़ वाई यहाँ पे डी जो है वो डीऑक्सीराइबोज को इंडिकेट करता है एंड आर यहाँ पे राइबोज न्यूक्लिक एसिड को डिनोट करता है। नेक्स्ट इज इट कंटेन्स एटीजीसी एंड आरएनए कंटेन्स एयूजीसी। डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड and nucleus is DNA is mainly found in the nucleus and RNA is found in both nucleus and cytoplasm। नेक्स्ट इज सेल साइकिल। देखिए सेल साइकिल ये कंप्लीट साइकिल को बताता है जिसमें सेल जो है डुप्लीकेट करता है जेनेटिक मटेरियल को, सिंथेसाइज करता है ऑफ द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल एंड अल्टीमेटली इट डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल। नेक्स्ट इज सेल डिविजन। सेल डिविजन इज डिविजन ऑफ सेल into 2 in which the cell increase in their number। नेक्स्ट इज मिटोसिस। देखिए हमने पहले बात की थी मिटोसिस की। मिटोसिस सेल डिविजन अगर्स इन सोमैटिक सेल इन विच टेक पार्ट इन ग्रोथ, रिपेयर एंड डेवलपमेंट। आप एग्जाम व्यू पॉइंट से इतना ध्यान रखेंगे दैट इज सफिशिएंट। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ मिटोसिस। देखिए आफ्टर मिटोसिस सेल डिवीजन वन सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल और उसमें जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं इट इज़ इक्वल टू द पेरेंट सेल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मिटोसिस में जो सेल डिवीजन होता है इसमें जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं दैट इज इक्वल टू द पेरेंट सेल और अनकंट्रोल्ड मिटोसिस मे कॉज द कैंसरस ग्रोथ। नेक्स्ट इज मियोसिस। देखिए मियोसिस सेल डिवीजन है इट अगर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल एंड दिस टाइप ऑफ डिवीजन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट। देखिए हमने डेप्लॉइड और हैप्लॉइड क्या था वो हमने पढ़ लिया था, तो आप इतना याद रखेंगे मियोसिस एंड मिटोसिस है दैट इज़ इनफ। नेक्स्ट इज टर्म्स रिलेटेड टू सिटोलॉजी दैट इज़ द स्टडी ऑफ सेल। तो सबसे पहला है डिप्लॉइड, 2 complete sets of chromosome। Diploid found in the somatic cell, हमने पहले भी पढ़ा ये। हैप्लॉइड सेट ऑफ 1 single set of chromosome is haploid। Next is crossing over। See exchange of genetic material between 2 non-sister chromatids takes place during meiosis। Cell division is called the crossing over। Next is homologous chromosome। A pair of chromosome having same size and shape bearing corresponding gene is the homologous chromosome। Next is phenotype। The character of organism can be seen directly, that is the phenotype, and genotype is genetic constitution। That's all for this lecture। We'll meet in the next lecture। I hope these lectures are making sense to you in your quick revision। Stay tuned। Thank you।